In the last class, what we were discussing about the buying an existing business, that what is better, like purchasing the business, existing business, or basically opening or starting a business by scratch. So if the term, what I told you earlier, the scratch is basically the activity in which we are starting the new business. So starting the business from scratch or purchasing existing business, that we were discussing about, right? We were discussing about कि क्या-क्या आपके methods, purpose, price को कैसे evaluate कर सकते हैं when we are purchasing the existing business. इसके अलावा आज जो हमारा टॉपिक होगा, सक्सेसफुल स्टोरी जो होगा, that will be over phone pay, and I guess everyone knows about this phone pay app, right? So we are going to discuss about it in today's class. Everyone turn on your camera. Everyone turn on your camera. Every student कैमरा टर्न ऑन करके बैठिए. एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद द क्लास. एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा, एवरी स्टूडेंट, एंड प्लीज डोंट टर्न ऑफ. चलिए, ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. सो ऑब्वियसली फॉर सम पीपल, for some people what their perception is, like अगर हम कोई नया business शुरू करेंगे, so there is no guarantee that we'll get the better customer base, we will get the proper market response, है ना? So that is the reason some people are feeling very secure when they are purchasing the existing business. ठीक है? Now, why the people are purchasing the existing business? Why it is a better option? Because someone else has done much leg work. It means पहले से ही किसी पर्सन ने बहुत ज्यादा अपने बिजनेस पे एक्सपेंस, एफर्ट और डेडिकेशन लगाया होगा. किसी ने मार्केट में अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए काफी साल दिए होंगे. ठीक है, तो कस्टमर बेस रेडी होगा, एम्प्लॉइज होगा, तो बना बनाया खाना खाने में तो सबको अच्छा लगता है ना? ट्रू कि नहीं? ट्रुथ. Like if mother is cooking, definitely you are ready to eat it because that is an easy task, right? But वही अगर खुद से बनाना हो, then that is a difficult thing because we have to see all the ingredient, what we need to make, how to make. ठीक है, sometime we are taking the help of YouTube for the cooking classes as well. True. So the same situation is here. When you are purchasing an existing business, then the effort and dedication of the other people, basically that is going to utilize for us. ठीक है, हमारे लिए वो यूजफुल हो जाएगा. अब अगर मैं बात करूं कस्टमर बेस बनाने का, कोई भी नया बिजनेस जब शुरू होता है तो आपके पास कस्टमर इतना इजीली तो आते नहीं है. उसके लिए आप कैंपेनिंग करते हो, एडवर्टीजमेंट करते हो, है ना? अलग आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया का यूटिलाइजेशन करना होता है. So these things are a very बोल सकते हैं एफर्ट भी लगता है, एक्सपेंसिव भी है. बट आपको सब कुछ अगर रेडी मिलता है, बट what you need to do, you need to just operate from that day when you will get or purchase that existing business. So that will be better, or that is very much easy comparison to starting the business from the scratch or by scratch, right? So इसी वजह से the people are basically preferring to the existing business. If we will see the kind of business to be brought depends upon the person's work experiences. अब जैसे आपको कौन से बिजनेस को खरीदना है, like which business you want to buy, that is totally depend upon your education, upon your skill and upon your requirement. ठीक है, कि आपको किस टाइप के बिजनेस को परचेज करना है. एग्जाम्पल मैंने लास्ट क्लास में भी दिया था और आज भी दे रही हूँ एग्जाम्पल, कि अगर कोई पर्सन है जो आईटी से रिलेटेड है, किस चीज से रिलेटेड है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है. अब एग्जाम्पल में जो एक बच्चा है, मंजीत है क्लास में. मंजीत, अभी बच्चा मंजीत है. अब इसको मान लीजिए सॉफ्टवेयर ज्यादा बेटर लगते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर, कोडिंग, ये सब चीजों में ही इज एंगेज, राइट? अब ऐसे सिचुएशन में अगर इसे अपना कोई बिजनेस शुरू करना होगा तो डेफिनेटली ही विल स्टार्ट द बिजनेस बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर. ट्रू. एंड इफ यू वांट टू बाय द बिजनेस, अगर इसे कोई बिजनेस खरीदना भी होगा तो इसी चीज, इसी फील्ड से रिलेटेड बिजनेस को ये परचेज करेगा, है ना? सो व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू वांट टू स्टार्ट, this is the important fact, or this is the reason for purchasing the business, existing business. ठीक है, कई बार ऐसा होता है
कि हमें बिजनेस को परचेज करने के टाइम पे वी हैव टू इवैल्यूएट द थिंग्स एंड वी हैव टू ready to understand about every pros and cons related with the business. ठीक है, कई बार बिजनेस का इमेज बहुत ही ज्यादा मार्केट में डिटोरिएट हो रखा होता है, बहुत खराब हो रखा होता है, स्पॉइल्ड होता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप बिजनेस को परचेज करेंगे तो हो सकता है दैट इज गोइंग टू इफेक्ट योर बिजनेस एज वेल, राइट? सो इसी वजह से कभी भी बिजनेस को डायरेक्ट परचेज कर लेना, ठीक है, विदाउट एनालाइजिंग अबाउट इट्स फाइनेंशियल सिचुएशन, अबाउट इट्स गुडविल, दिस इज नॉट द राइट वे टू परचेजिंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि अगर आप बिजनेस को परचेज करते हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करते हैं, तो इसके लिए भी आपके पास इनफ नॉलेज होना चाहिए, साथ साथ में एनालाइजिंग पावर होना चाहिए। और जो भी आप बिजनेस को परचेज कर रहे हैं वो बिजनेस आपको बेनिफिशियल नजर आना चाहिए कि फ्यूचर में आप इस बिजनेस के थ्रू अपने बिजनेस, अपने गोल को, अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर पाओगे। ठीक है, बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, अगर हम बात करें सिर्फ रिस्क के मैटर में, तो आपका परचेज करना एग्जिस्टिंग बिजनेस को वो लोअर रिस्क है एज कंपैरिजन टू स्टार्टिंग द न्यू बिजनेस, व्हिच आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ठीक है, and there are 5 stages which is basically required for purchasing an existing business. What are those steps, what are those stages? Who is going to tell me about it? Raise your hand. What are those stages? कौन कौन से स्टेज है वो? कोई बताएगा मुझे कि what are those stages which we already discussed in the last class? Turn on your camera everyone. अगर बात समझ नहीं आ रही है तो मैं बोल दूं कैमरा टर्न ऑन करके बैठिए सारे बच्चे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द व्हाट आर द 5 stages which is involved in this. What are those 5 stages? First one is when we already planned about it that we have to purchase the business now. जब हमने पूरा प्लान कर लिया कि अब हम लोग को बिजनेस परचेज करना है, तो सबसे पहला काम क्या होगा? फाइंडिंग अ सुटेबल बिजनेस, यानी मार्केट में कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो सेल होने वाले हैं या जिसकी इक्विटी को मार्केट में सेल किया जा रहा है, बिडिंग हो रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। तो फाइंड द सुटेबल बिजनेस विच इज अवेलेबल फॉर सेलिंग पर्पस, राइट? सेकेंड वन इज गेटिंग द इंफॉर्मेशन यू नीड। जो भी बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो फिर आप कलेक्ट कीजिए। Determining the price. Once you are very much satisfied with all the information which is given by the mediator or agents about the business, then you will determine the price कि कितना प्राइस आप पे कर सकते हैं बिजनेस के लिए, उसके शेयर्स को परचेज करने के लिए। So just determine price, determine कीजिए। अगर आपको प्राइस अच्छा लगे तो ठीक है, अदरवाइज आप निगोशिएट कीजिए डील में। जैसे अगर वो बोलता है 50 लाख रुपीज और आप 25-28 पे हो तो निगोशिएशन कीजिए। Once the negotiation is done, then the financial transaction जो भी होगा, पैसा पे करना, पैसा फिर हम पे करेंगे और एग्जिस्टिंग बिजनेस को अपना बिजनेस बना लेंगे। ठीक है, उसके अलावा मैंने आप लोगों को कुछ पॉइंट्स और भी बताया था कि हाउ वी कैन मिनिमाइज द रिस्क। मीन्स परचेजिंग द बिजनेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस इज द सेकेंड थिंग, starting the business, new business, that is also a different thing, but in both situation how we can minimize the risk, उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बताया था। जैसे अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएशन करो कि बिजनेस के लिए आप कंपैटिबल हैं कि नहीं, आपका प्रॉपर गोल है या नहीं है। आप बिजनेस में देखिए कि जो आपका बिजनेस है वो आपके एक्सपीरियंस के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे मैंने मंजीत का एग्जाम्पल लिया कि मंजीत जो है वो क्या कर रहा है कि मान लीजिए उसको सॉफ्टवेयर जो है वो, इसको कोडिंग आता है, सॉफ्टवेयर वगैरह आ रहा है, तो इसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया? सॉफ्टवेयर एंड कोडिंग, आईटी हो गया इसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, और इसका इंटरेस्ट उसमें है और ये किसी और सेक्टर में बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है। तो इसका एक्सपीरियंस और इसका इंटरेस्ट जब बिजनेस स्टार्ट से मैच नहीं करेगा तो रिस्क अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसे बिजनेस को आप रन करने में इफिशिएंट होंगे ही नहीं, है ना? सो फॉर मिनिमाइजिंग द रिस्क in any business, either that is a new business or either that is existing business, first of all what we need to do, we need to evaluate ourselves. पहले हमें अपने आप को evaluate करना चाहिए कि we are compatible for starting the business or not, we are compatible to running the business or not.
सेकेंड थिंग वी हैव टू डू, सेकेंड क्या करना चाहिए कि हमें अपने बिजनेस के साथ मतलब डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस कोरस्पॉन्ड विथ योर इंटरेस्ट, आपके एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट के साथ कौन सा बिजनेस जो है वो मैच खा रहा है वो देखना। फिर अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या फिर वो जो बिजनेस वहां एग्जिस्टिंग है उसमें कौन कौन से मैक्रो एनवायरनमेंट को एनालाइज करना। मैक्रो एनवायरनमेंट तुम लोगों ने पढ़ा होगा बिजनेस एनवायरनमेंट में, याद है ना, पेस्टल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, याद है ना, याद है या नहीं है याद, पेस्टल के बारे में याद है। सो सेम थिंग यहां पर है कि जो आपका पेस्टल है मतलब मैक्रो एनवायरनमेंट को हमेशा एनालाइज करते रहना, ये भी बहुत जरूरी है। उसके अलावा आप प्राइस डिटरमाइन कीजिए, अगर आप बिजनेस को परचेज कर रहे हैं ना तो आप कभी भी ऐसा मत सोचिए कि वॉट एवर दे आर आस्किंग फॉर वी हैव टू गिव दैट, राइट। Just try to negotiate and just try to evaluate that what value this firm is carrying, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल में कोई मिल है, मिल समझते हो, जैसे मिल होता है ना, जैसे आपके आटे का मिल और ये इस टाइप का जो मिल्स हैं, या फिर मिल आपके हैंडलूम्स के भी होते हैं, जैसे कपड़े वगैरह बिनने वाले। अगर बहुत दिन से कोई वैकेंट ऐसे मिल पड़े हैं और उसमें कोई मशीनरी काम नहीं कर रहा, प्रॉपर नहीं है, स्पेस जो है वो बहुत छोटा है, तो ऐसे सिचुएशन में जो बिजनेस होगा उसका कॉस्ट ऑब्वियसली थोड़ा लो होगा, है ना। तो अगर दे आस्क फॉर द 20 लाख फॉर दैट, तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू मार्केट वैल्यू यू हैव टू इवेल्युएट द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ एरिया एंड दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस, राइट। सो डिटरमाइन करना प्राइस बहुत जरूरी है। उसके अलावा आप फंड कहां से रेस करेंगे तो ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनेंस रिस्क इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। उसके अलावा टेक ओवर करने का पूरा प्रोसीजर, लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाना जरूरी है। व्हाई? बिकॉज कई बार ऐसे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज भी होता है कि आपके बिजनेस को सेल करने की बात होगी लेकिन एक्चुअल में बिजनेस जो है वो बोल सकते हैं ना कि आपको हैंडओवर नहीं होगा, या कुछ भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज भी हो सकता है। तो जो भी आप एग्रीमेंट करें वो लीगल डॉक्यूमेंट और स्टैम्प पेपर पे आप एग्रीमेंट करें। सो दीज आर दोस थिंग्स व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मिनिमाइज द रिस्क when we are purchasing the existing business or when we are starting a new business, right? कुछ टर्म्स तो इसमें existing business के लिए हो गए, जैसे determine the price, legal documents, ठीक है। सो ये सब तो existing business के लिए हो गए, लेकिन self evaluation, start a business, correspondence of business with the interest and experience, so this is for the both type of business, new business, existing business. Okay, is the price right? ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में टॉपिक कर लिया था, is the price right? एवरीवन क्लास में थे लास्ट टाइम या नहीं थे? सो इज द प्राइस राइट में हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था कि जब हम कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, जब हम उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो प्राइस को एनालाइज करना जरूरी है, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द अदर पर्सन, we are dealing with the other person who have that particular ownership of the business. उस person के पास ownership है business का, तो उस person से हम business को अपने take over कर रहे हैं, purchase कर रहे हैं। तो सेलर जो है, जो भी है, वो अपना हार्ड वर्क और डेडिकेशन आपको दे रहा है, एक तरीके से अपना वो डेडिकेशन का पैसा लगा रहा है। बिजनेस का तो है ही, ठीक है, जो बिजनेस का एसेट्स है जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, वो तो एक अलग फॉर्म है ही, साथ साथ में वो अपना डेडिकेशन और एफर्ट भी आपको हैंड ओवर कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो बायर्स को वांट टू मेक अ साउंड इन्वेस्टमेंट व्हिच इज ऑफरिंग ऑन द एक्सेप्टेबल रिटर्न। व्हाट डज इट मीन कि कभी भी इन्वेस्टर्स जो भी हैं, मतलब जैसे मैं अगर बिजनेस खरीद रही हूँ और बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल सेक्टर का लग रहा है मुझे, तो मुझे इन्वेस्टमेंट भी वैसा ही करना चाहिए कि सेलर जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाए मेरे जो भी मैंने ऑफर किया उससे। जैसे मैंने अगर मान लीजिए 20 लाख बोल दिया और उसने 18 लाख सोचा हो या 25 लाख सोचा हो, मैं 20 लाख कह रही हूँ, ऑफर दे रही हूँ, तो हो सकता है कि माइट भी वो मुझे हैंड ओवर कर दे बिजनेस, ठीक है। सो साउंड इन्वेस्टमेंट हमेशा ही ऑफर करना चाहिए अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर बिजनेस से मुझे बहुत रिटर्न आएगा, है ना। उसके अलावा बाय, अगर व्हेन वन बाइज अ बिजनेस, अगर कोई बिजनेस खरीदता है तो उसका मेन रीजन क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न, और इसके लिए आपका सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि यू हैव टू एनालाइज द पास्ट डेटा ऑफ दैट बिजनेस, यानी उस पास्ट डेटा निकालिए उस बिजनेस का कि ये बिजनेस किस तरीके से इफिशिएंटली चल रहा था।
अगर ये इफिशिएंटली चल रहा है, अच्छे से चल रहा है बिजनेस, तो फिर इसका सेलिंग का रीजन कुछ भी हो सकता है, जो मैं अभी आगे बताऊंगी पॉइंट आपको। अगर उसका बहुत ही बुरा सिचुएशन रहा है, बहुत ही खराब बैड मतलब गुडविल रहा है, बैड डेप्ट है इसके ऊपर, बिजनेस के ऊपर, तो ये हो सकता है कि आपको लॉस दे, ठीक है। तो पास्ट डेटा उस बिजनेस से रिलेटेड जरूर एनालाइज कीजिए, ठीक है। उसके अलावा आपको यहां पर देखना पड़ेगा, और मतलब यहां पर यू हैव टू डू द वैल्यूएशन। अगर आप कभी भी आप बिजनेस का वैल्यूएशन करते हैं, वैल्यू लगाते हैं, तो यू हैव टू एनालाइज सम फैक्ट्स। चलिए, सो यहां पर हमें क्या क्या चीजों का वैल्यूएशन हम कौन कौन से बेसिस पे कर सकते हैं, वही मैंने बोला, पास्ट से कर सकते हैं, ट्रेंड से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई बिजनेस है, वो एसेसरीज बनाता है, ज्वेलरी बनाता है, तो अगर वो ज्वेलरी बना रहा है तो हो सकता है आगे चल के उसका ट्रेंड अगर मार्केट में है, जैसे आजकल ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का बहुत ज्यादा ट्रेंड है मार्केट में, है ना लड़कियां, वो तुम तो बताओ, है ना। सो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का बहुत ज्यादा ट्रेंड है और वो ज्वेलरी से रिलेटेड है, तो यस डेफिनेटली वो ट्रेंड के साथ आपका बिजनेस मैच कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है, ग्रोथ कैसा हो रहा है बिजनेस का। जैसे कोविड पीरियड में अगर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस को परचेज करेगा तो उसका क्या ही ग्रोथ होगा, कुछ भी ग्रोथ नहीं होगा, है ना, अगर अनटिल एंड अनलेस वो कुछ नेसेसरी और कंपलसरी प्रोडक्ट ना सेल कर रहा है तो यहाँ पर पास्ट देख लीजिए, पास्ट आपका क्या है, पास्ट बिजनेस का मार्केट में ट्रेंड क्या है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है, मार्केट शेयर क्या है, मतलब उसका ऑलरेडी कितना कस्टमर्स मार्केट में अवेलेबल है, तो वो सब चीजें हम वैल्यूएट कर सकते हैं। दूसरा कि रीजन क्या है सेल करने का, यानी कि अगर हम सेल कर रहे हैं बिजनेस तो भाई क्यों कर रहे हैं सेल, ठीक है। अगर वो प्रॉफिट में चल रहा है फिर भी हम सेल कर रहे हैं तो कुछ तो बहुत बड़ा रीजन होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि जो रीजन है ना सेल का, वो उसके प्राइस को इन्फ्लुएंस कर देता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि जो सेलर है वो अंडर प्रेशर है बिकॉज ऑफ इट्स हिज इल हेल्थ, यानी कि हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन हो जिसके कोई हियर लीगल हियर नहीं हो, या फिर कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं हो जो उसके बिजनेस को संभाल पाए, और वो बीमार रहता है, इल हेल्थ है उसका, तो ऐसे सिचुएशन में भी वो बिजनेस को सेल करेगा ही, क्योंकि वो बिजनेस को खुद हैंडल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। हो सकता है कि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रहा हो, कौन भाई, ओनर, सेलर जो भी है। तो ऐसे केस में आप जो है ना थोड़ा प्राइस को मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, क्योंकि मजबूरी है सेलर की यहाँ पर, आप समझ रहे हो, द पर्सन इज इन मिजरेबल कंडीशन वेयर दैट पर्सन इज फोर्स्ड टू सेल द बिजनेस। तो ऐसे सिचुएशन में यू कैन गेट मोर रीजनेबल प्राइस, मतलब आपको और सस्ता और रीजनेबल और इकोनॉमिकल प्राइस में बिजनेस मिल सकता है। आ रही है बात समझ में एवरीवन? यस मैम। क्लियर हो रहा है सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, तो यहाँ पर वही चीज है कि अगर बिजनेस जो है वो सेल करने का वैलिड रीजन है, जैसे ओनर बीमार है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, डेथ हो गई है ओनर की, कुछ भी ऐसा रीजन है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका मोर रीजनेबल प्राइस में आपको बिजनेस हैंडओवर किया जा सकता है। और जितना ज्यादा सेलर के लिए बिजनेस को सेल करना अर्जेंट हो जाएगा, यानी जितना जल्दी वो चाहेगा सेल करना, उतना ज्यादा इकोनॉमिकल प्राइस में आपको बिजनेस मिल जाएगा। आई बात समझ में? जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि डेप्ट है, बहुत हाई डेप्ट है, मतलब 50 लाख का कर्ज है और उसको बिजनेस बेचना ही बेचना है, तो कोशिश करेगा, हो सकता है उसके बिजनेस की वैल्यू करोड़ में हो तो भी आपको वो 70-75 लाख तक मिल जाए, क्योंकि उसे अर्जेंटली पैसे चुकाने हो, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में जितना अर्जेंट सेलर सेल करना चाहेगा अपने बिजनेस को, उतना ज्यादा आपका जो प्राइस है, किसका प्राइस, आपके बिजनेस का, वो डाउन होगा, कम होगा, और बायर को रीजनेबल रेट में आपका बिजनेस जो है वो मिल जाएगा। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर? चलिए, यस मैम। नेक्स्ट वन इज, कुछ चीजें और भी होती हैं, जैसे कि आपकी कैपेबिलिटी भी होती है कि आप कैसे निगोशिएशन करते हैं प्राइस में। अब जैसे मैं एग्जाम्पल, आई एम नॉट गोइंग टू टेक द एग्जाम्पल ऑफ वुमेन एंड आई एम नॉट गोइंग टू टेक द एग्जाम्पल ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, लेकिन ये बात फैक्ट है कि लड़कियों का बार्गेनिंग पावर बहुत स्ट्रांग होता है। ट्रू? सही बात है ना? एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, लाइक आई जस्ट वांट टू, व्हाट इज नेगोशिएशन? नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है? बार्गेन करना, बार्गेनिंग।
तो अगर आपकी बार्गेनिंग स्ट्रांग है, मतलब आप बार्गेन जब कर रहे हैं तो आप वैलिड रीजन के साथ कर रहे हैं कि नहीं मेरे पास इतना पैसा नहीं है, कुछ भी आप रीजन दे रहे हैं XYZ, आप उसको वैल्यूएशन बता रहे हो, कुछ भी रीजन देकर के अगर आप बार्गेन कर पा रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है कि आपको रीजनेबल रेट में बिजनेस हैंडओवर हो जाए। ठीक है, तो यहां पर पर्सन में एबिलिटी होनी चाहिए निगोशिएशन की। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि अगर बायर ने दिखाया जल्दी बिजनेस परचेज करने का, तो ऐसे केस में निगोशिएशन बहुत इंपॉसिबल हो जाता है। जैसे कि बायर को बहुत जल्दी कि बिजनेस हैंडओवर हो जाए, उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे सिचुएशन में सेलर जो है ना वो बिल्कुल भी प्राइस कम नहीं करेगा। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ। अभी सरस्वती पूजा था, कुछ दिन पहले बसंत पंचमी था। तो बसंत पंचमी में हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं हम लोग ऑब्वियसली। अब यहाँ पर जब आप मार्केट में ऐसे टाइम पे जाओगे तो यू विल सी दैट पूजा की जितनी सामग्री होगी या पूजा का सामान, फ्रूट्स वगैरह जो होगा, उसका कॉस्ट बिल्कुल भी कम नहीं करते हैं सेलर। करते हैं क्या? नो मैम, हाई रहता है। हाई रहता है बिकॉज उस समय डिमांड बहुत हाई है ना। तो यही सिचुएशन में कह रही हूँ कि जब बायर्स बहुत सारे हैं और बायर को बहुत जल्दी है बिजनेस परचेज करने का, तो ऐसे सिचुएशन में सेलर जो है वो बिल्कुल भी प्राइस कम नहीं करेगा एग्जिस्टिंग बिजनेस का, बिकॉज ही नोज कि इफ दिस ए पर्सन इज नॉट गोइंग टू परचेज, बी इज गोइंग टू परचेज इट। क्लियर हो गई बात? व्हेन द डिमांड इज वेरी मच हाई ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक क्लाइमेट। इकोनॉमिक क्लाइमेट भी बहुत मैटर करता है। जैसे कि अभी जब कोविड 2 साल चला, तो इकोनॉमिक क्लाइमेट हम लोग का हेल्दी था या अनहेल्दी था? अनहेल्दी था मैम। अनहेल्दी था। क्यों अनहेल्दी था? क्योंकि लगभग मार्केट में ई कॉमर्स को छोड़कर और मेडिसिन और नेसेसरी आइटम्स को छोड़ के लग्जीरियस जितने भी आपके कंपनीज थी जो लग्जीरियस प्रोडक्ट सेल करती थी, जैसे कि आप एग्जांपल में ले लो ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर यानी कि जो कार और आपके स्कूटर्स और स्कूटीज वगैरह सेल करते हैं, बाइक वगैरह जो सेल करते हैं, उसका डिमांड एकदम से कम हो गया। क्यों? क्योंकि लोग जो थे उस टाइम पे, बहुत लोग की जॉब चली गई, लोग जो थे वो सिर्फ नेसेसरी आइटम्स पे ज्यादा डिपेंडेंट थे कंपैरेटिवली टू लग्जीरियस आइटम, राइट? सो व्हाट इज द इकोनॉमिक क्लाइमेट, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ जीडीपी एंड व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ द मार्केट? इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ गई है, डिफ्लेशन है, तो उस हिसाब से भी आपके बिजनेस का जो प्राइस होगा वो आपका लगेगा। अगर बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में, रिसेशन के टाइम पे अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक क्लाइमेट बहुत पुअर होता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपका बिजनेस का प्राइस हो सकता है डाउन हो जाए, कम हो जाए प्राइस। ठीक है, उसके अलावा एक और भी रीजन है, द टाइप ऑफ बायर, मतलब खरीदने वाला पर्सन किस टाइप का है। ठीक है, टाइप ऑफ द बायर, लाइक जैसे अभी अगर हम एग्जाम्पल में देखें तो हम लोग के जो कंज्यूमर, जो हम लोग का मार्केट है ना, जहां हम लोग कंज्यूमर्स हैं, दे आर वेरी डायनामिक, दे आर वेरी हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस का मतलब है कि हर एक कंज्यूमर का नीड एक दूसरे के साथ मैच नहीं करता है। सही बात है? yes. अगर मैच कर रहा होता, अगर हर एक कंज्यूमर का डिमांड और हर एक कंज्यूमर का जो नीड होता वो सिमिलर होता, तो इतने सारे अल्टरनेटिव्स और टाइप्स प्रेजेंट होते क्या मार्केट में? जो आप देखते हो, एक बाथिंग सोप का भी एग्जांपल ले लो, वैरायटीज है, ट्रू। अगर आप बिस्किट्स का एग्जांपल ले लो, वैरायटीज है, ट्रू। सो दैट इज द सेम रीजन, द टाइप ऑफ द बायर। अब एग्जांपल में एन एक्सपीरियंस्ड बिजनेस पर्सन with extensive knowledge of industry and strong negotiating skill influence the seller। यानी अगर कोई पर्सन बहुत एक्सपीरियंस है, या फिर कई बार होता है कि उसका पूरा बैकग्राउंड बिजनेस से होता है, तो उसने पूरा बिजनेस एटमॉस्फेयर में वो पर्सन रहा हो, ठीक है, तो ऐसे लोग जो होंगे, इस टाइप के जो बायर्स होंगे, जो नॉलेजेबल, स्किल्ड, एक्सपीरियंस्ड होंगे इंडस्ट्रीज को लेकर, they are able to negotiate the price of the business very properly। ठीक है, क्लियर होगी बात? समझ में आया सबको यहां तक? यस मैम। तो ये सारे रीजन है कि प्राइस जो है वो डिटरमाइन होता है। अब नेक्स्ट आते हैं हम, इंफॉर्मेशन इज द की। इंफॉर्मेशन इज द की। अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें तो रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बहुत बार हमारे पास नहीं आता है। अच्छा, रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है
कि हर एक बिजनेस में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बताता है कि आपका बिजनेस हेल्दी है या अनहेल्दी है। कैश फ्लो, आउटफ्लो और इनफ्लो ऑफ द कैश, यानी कितना पैसा कैश का जा रहा है, कितना कैश आ रहा है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इन्वेस्टिंग एक्सपेंस, टैक्स वगैरह जितनी भी चीजें हैं, इन सब में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम सबको इंक्लूड करते हैं। फाइनली हमारा बैलेंस शीट बनता है। कॉमर्स वाले बच्चे पता है ना, ये जो भी चीजें मैं बता रही हूँ होता है। यस मैम। तो यहाँ पर वही चीज बोला जा रहा है कि कई बार ऐसा होता है, अगर हम देखा जाए अनफॉर्चुनेटली, कई बार जो जिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे हमारा डिसीजन रिलाई करता है वो हमें प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं किया जाता है, विच मेक्स द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि पास्ट इंफॉर्मेशन निकलवाना और बिजनेस का इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस इज समथिंग व्हेन यू विल डिसाइड देन यू विल थिंक, मतलब अगर आपको बिजनेस लेना है तब आप प्राइस के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। तो प्राइसिंग इज अ ट्रांजैक्शन ओनली, ठीक है, बट इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड विद द सक्सेस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पर इन केस ऑफ द क्लोज कॉर्पोरेशन, बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो बंद हो चुके होते हैं। क्या हो चुके होते हैं? क्लोज हो चुके होते हैं, बंद हो चुके होते हैं। देखो बहुत सारे बिजनेस होते हैं, एग्जिस्टिंग बिजनेस, कुछ बिजनेस चल रहे हैं और अचानक से उनको सेल करना पड़े, कुछ बिजनेस बंद हो रखे हैं और उसके बाद हम उसे सेल करें। जैसे मैंने मिल का एग्जांपल दिया कि मिल अगर बिल्कुल क्लोज है, बंद है, तो उस मिल के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाना, अगर वो कोई रूरल एरिया में है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है ना। और खासकर वो कॉर्पोरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाना कठिन है, मुश्किल है, जो 10-20 साल से बंद है। अगर हम 20 साल से पहले जाके देखेंगे सिचुएशन, तो हमारा इंटरनेट का एरा, डिजिटलाइजेशन का तो एरा भी नहीं था जो कि हम इंटरनेट से सारे इंफॉर्मेशन निकलवा ले। बहुत रेयर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा नेट पर, राइट। तो ऐसे केस में जब आपका कॉर्पोरेशन बंद हो चुका है, आपका जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि जो छोटे मोटे बिजनेस को चलाने वाले पर्सन होते हैं, जो सिंगल पर्सन एक बिजनेस को रन कर रहे होते हैं, जैसे कि आसपास के जनरल स्टोर वगैरह वाले जो होते हैं, दे आर सोल प्रोप्राइटर्स। तो सोल प्रोप्राइटर्स वगैरह जो हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अनऑडिटेड रहते हैं। अनऑडिटेड का मतलब क्या है कि चार्टेड अकाउंटेंट जो होते हैं वो आपके हर साल कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आपका बिजनेस में कोई इलीगल चीज तो नहीं चल रहा, कोई ओमिशन, कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। तो ये कंपनीज एक्ट के अंडर में सारे बिजनेस को ऑडिट करना कंपलसरी है। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे जो बिजनेस हैं जो काफी सालों से बंद हो रखे हैं, उन बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो काफी साल से ऑडिट नहीं हो रखे हैं। तो ऐसे केस में आपके सामने एक क्लियर पिक्चर उस बिजनेस को लेकर नहीं आएगा, है ना। सो कोई भी अगर इंफॉर्मेशन जो आपको मिला हो, वट एवर इंफॉर्मेशन यू आर गिवन, द गोल्डन रूल इज टू प्रूव, आपको उसी इंफॉर्मेशन से काम चलाना पड़ेगा। सो देयर आर सम इश्यूज व्हेन वी आर लुकिंग, मतलब ये कुछ इश्यूज हैं जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स को ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या इश्यूज है, ठीक है, तो ये इश्यूज से मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, ठीक है, क्या क्या वो इश्यूज हैं। इंफॉर्मेशन इज द की, तो इससे हम लोग नेक्स्ट क्लास में टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। बिकॉज हम लोग का बहुत दिन से क्या हो रहा है ना कि यहां तक सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। So I am sharing the screen. Okay. Everyone, you all are able to see the screen? सबको screen दिख रहा है? Everyone? Okay. अभी तो हाँ दिख गया बस। Okay. Who is going to tell me about the phone pay? कितने लोग वो फोन पे यूज करते हो? How many of you? Yes ma'am. Yes ma'am. I guess everyone is using phone pay, right? Yes ma'am. So अगर हम फोन पे की बात करें, so it is a part of the evolution in the payment system. So फोन पे जो है, it is an application which is utilized for making the payment and receiving the payment, right? Like Paytm, it is working. अगर हम बात करें आज के टाइम पे, so we are not ready to carry the cash. True? सही बात है?
Yes, Yes, ma'am. कितने लोग हैं जो कैश को कैरी आज भी करते हैं? मतलब मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती. आई विल एक्सक्लूड माई सेल्फ दैट आई नेवर कैरी सो मच कैश because that is very much unsafe when you are traveling, when you are going here and there. अगर चोरी हो गया, थेफ्ट हो गया या पैसे गिर गए, सो आपके कैश के साथ बहुत सारे रिस्क हमेशा एसोसिएटेड रहते हैं. सही बात है? So carrying cash is something which is very difficult nowadays. So that laid the birth to the digital payment. अब इसी वजह से आपके डिजिटल पेमेंट का सिस्टम आया. खैर अगर डिजिटल पेमेंट की मैं बात करूं तो इससे पहले का सिस्टम क्या था? that we were carrying the plastic cards. प्लास्टिक कार्ड्स मतलब एटीएम कार्ड्स को हम प्लास्टिक कार्ड्स कहते हैं. जो डेबिट कार्ड्स और जो आप क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनको हम प्लास्टिक कार्ड्स कहते हैं. तो पहले हम प्लास्टिक कार्ड्स को कैरी करते थे. खैर प्लास्टिक कार्ड्स भी कैरी करना कई बार बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि वो एटीएम कार्ड जो होता है वो अगर कहीं गिर गया, दैट द सेम सिचुएशन इज विद लाइक द कैश. बट यस, दैट वाज लिटिल बिट इजी एज कंपैरिजन टू द कैरिंग द कैश. बट एटीएम्स भी आपके हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं. भाई कैश निकाले तो कहां से निकाले, ऐसा भी होता है ना. कई बार आपके एटीएम्स में पैसे अवेलेबल नहीं होते हैं. ये भी सच बात है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. These problems we are facing all the time. हमेशा हम लोग ये सारी चीजें फेस करते रहते हैं. सो कैरिंग करना, कैश को कैरी करना या प्लास्टिक कार्ड्स को यूज करना, ये सब लिटिल बिट डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए. और इसी वजह से हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम जो है इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ. इट इज बेसिकली वर्किंग एज अ मोबाइल वॉलेट. मोबाइल वॉलेट क्यों? जैसे वॉलेट में हम पैसे रखते हैं वैसे मोबाइल आपके लिए एक वॉलेट की तरह काम करेगा. अगर आपके पास पैसे नहीं है देन यू कैन यूज दिस एप्लीकेशन एंड यू कैन मेक द पेमेंट. ठीक है, चलिए यहां तक सबको समझ में आया? कैमरा ऑन करके बैठो. अब मोबाइल एप्लीकेशन जो है ये पहले क्या था कि जो मोबाइल एप्लीकेशन था दैट वाज बेसिकली यूज्ड इन सम ऑफ द स्टोर्स और इन सम ऑफ द ब्रांडेड स्टोर्स. बेसिकली अगर मैं आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात बोलूं तो ऑर्गेनाइज सेक्टर हमारे इंडिया में ना सबसे फास्टली कोई भी चीज को अडॉप्ट करते हैं. जैसे प्लास्टिक कार्ड और क्रेडिट कार्ड अडॉप्शन ये एक्सेप्ट करने की बात आई तो दे वर बेसिकली यूजिंग. लेकिन वही घर के आसपास किसी ग्रोसरी स्टोर में जाएंगे तो वो आज भी हमसे कार्ड नहीं लेंगे. लेंगे क्या? नहीं लेंगे ना. सही बात है. तो यहाँ पर जो आपका फोन पे है ना, वो पहले तो कई बार फोन पे से पहले जो भी आपका तरीका था प्लास्टिक कार्ड्स वगैरह यूज करने का, दैट वाज इवन नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल ऑल द टाइम. फॉर द ग्रोसरीज एंड ऑल वी वर स्टिल डिपेंडेंट अपॉन द कैश. लेकिन मोबाइल एप्लीकेशन जो है nowadays it is preferred for the method of payment of the groceries, बिल वगैरह पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, फोन रिचार्ज कराना, ये सारी की सारी चीजें हमें क्या कर सकते हैं हम? वी कैन डू इट वाया यूटिलाइजिंग द एप्लीकेशन एंड लाइक द फोन पे. लेट मी टेल यू अबाउट वन स्टोरी कि जब मुझे याद है कि जब मैं दिल्ली में थी और मैं जब वहां पर पढ़ाई कर रही थी तो हम लोग एक कूपन को खरीदते थे. उस कूपन को स्क्रैच करते थे, हैश और एक नंबर आता था 141, मुझे याद भी है वोडाफोन का. उसके बाद फिर उस नंबर को डाल के फिर हैश या स्टार कुछ लगाकर मैसेज भेजते थे, तब जाकर के वो फोन रिचार्ज होता था. आजकल वी हैव मल्टीपल, यस वी हैव मल्टीपल ऑप्शन. नेट पैक का कूपन होता था. हाँ बिल्कुल, नेट पैक का भी कूपन होता था. लेकिन और उसके लिए हम लोग क्या करते थे, पहले जाकर के स्टोर पे विजिट करते थे, फिजिकली स्टोर जाना पड़ता था, फिर वहां से लेना पड़ता था कूपन. और कई बार ऐसा होता था कि पैसे नहीं है, अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, 30 रुपए 25 रुपए का भरवाया, खत्म हो गया और आपके पास कॉल करने का ऑप्शन भी प्रेजेंट नहीं है. लेकिन बिकॉज ऑफ द थैंक्स टू इंटरनेट दैट वी आर नॉट फेसिंग द सेम प्रॉब्लम नाउअडेज. वी हैव मल्टीपल ऑप्शन फॉर मेकिंग रिचार्ज. फोन पे रिचार्ज करना बहुत इजी हो गया है. फोन पे इसी सब पेमेंट का एक पार्ट, एक नया एप्लीकेशन है. और ये कब आया? ये आया 2015 में. इट वाज फाउंडेड इन 2015. ठीक है, ये इंडियन यूपीआई बेस्ड ऐप है. यूपीआई बेस्ड ऐप है यानी कि आप जैसे आपका यूनिफॉर्म मतलब पेमेंट जो आइडेंटिफायर इसको कहते हैं, जैसे आपका गूगल पे काम करता है वैसे ही आपका फोन पे काम करता है. दे हैव अ क्यूआर कोड, यू कैन इजिली स्कैन, यू कैन मेक द पेमेंट. ठीक है, अब हैज बीन एक्वायर्ड बाय फ्लिपकार्ट अ ईयर लेटर, मतलब 2015 में इसको फाउंड किया गया और एक साल बाद फोन पे को फ्लिपकार्ट ने एक्वायर कर लिया.
फोन पे आजकल बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो रहा है डिजिटल पेमेंट के लिए आपके इंडिया में, और ये ऐप जो है वो आपके बैंक अकाउंट को भी डिजिटली मेंटेन रखता है, और आपके लिए कन्वीनियंस है कि अगर आपको किसी को फंड ट्रांसफर करना हो, आपकी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के साथ ये लिंक रहता है, ठीक है। सो यहाँ पर इंस्टेंट मनी ट्रांसफर के लिए वी कैन यूज फोन पे, ठीक है। फोन पे कंपनी की कुछ हाइलाइट्स देखते हैं, क्या है इस कंपनी की कंपनी का बेसिक इंफॉर्मेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु, इंडिया में। फाउंडर कौन है? देयर आर द 3 फाउंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी फोन पे। फर्स्ट वन इज समीर निगम, सेकेंड वन इज बर्जिन इंजीनियर, एंड थर्ड वन इज राहुल चरी, ठीक है। सो दिस 3 पर्सन इज द फाउंडर ऑफ द फोन पे, एंड व्हेन इट वाज फाउंडेड इन दिसंबर 2015। सेक्टर कौन सा है इनका? फिनटेक है, जैसे कि आपका अनअकैडमी वगैरह का एडुटेक था ना, एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इसका है फाइनेंस रिलेटेड, इसलिए फिनटेक है, और इसका वैल्यूएशन लगभग $5.5 बिलियन है 2021 के हिसाब से। अब बात करते हैं इसके बारे में, फोन पे की स्टोरी के बारे में देखते हैं कि फोन पे एक डिजिटल पेमेंट कंपनी है, 2015 में स्टार्ट हुआ, और इसमें सपोर्ट है लगभग 11 लैंग्वेज का। कितने लैंग्वेज यूज कर सकते हो फोन पे को यूज करने के लिए? हाउ मेनी लैंग्वेजेस? 11 लैंग्वेजेस, ठीक है। और ये पहला एक ऐसा पेमेंट ऐप है जो यूपीआई के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। गूगल पे भी है और आपका ये भी यूपीआई पे बेस्ड है। और ये जो ऐप है ये यूजर को रिसीव करना और सेंड करने पैसा, बैलेंस भी आप चेक कर सकते हो इसमें, साथ साथ में गोल्ड भी परचेज कर सकते हो। सोच रहे हो एक चलता फिरता बैंक है ये हमारे लिए। वी कैन परचेज द गोल्ड, परफॉर्म अ रेंज ऑफ ट्रांजैक्शंस लाइक डीटीएच पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट, गैस बिल पेमेंट, हर एक पेमेंट्स के लिए भी फोन पे इज यूज्ड, ठीक है। उसके अलावा ये एक अप्रूव्ड ऐप है, इसलिए इंडियन मर्चेंट्स जो हैं या राइड्स वगैरह बुक करने के लिए भी आप फोन पे को यूज कर सकते हो। फूड को ऑर्डर करने के लिए, जैसे स्विगी और जोमेटो से हम फूड मंगवाते हैं, उसके लिए भी हम फोन पे यूज कर सकते हैं। और फोन पे को ना लीगल सैंक्शन पता है किसने किया है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने। अब आरबीआई ने जब इसको ऑपरेट करने का लीगल राइट्स दे दिया है, इसीलिए फोन पे एक ऑथराइज्ड वे में आपके फाइनेंशियल डेटा जो है उसको आराम से रखता है, शेयर करता है, बस वहीं तक जहां तक रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर मान लीजिए अगर कल को आप कोई गवर्नमेंट फॉर्म फिल कर रहे हैं और फोन पे से पेमेंट कीजिएगा, तो जिसको पेमेंट जा रहा है बस वहां तक वो इंफॉर्मेशन शेयर होगा, उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन कहीं भी शेयर नहीं होगा। आपका अकाउंट डिटेल फोन पे के साथ ही रहेगा। सो दे आर मेंटेनिंग द सिक्योरिटी एंड सीक्रेसी एज वेल, ठीक है। उसके अलावा फोन पे इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो लगभग डिजिटल पेमेंट जो ट्रांजैक्शन है उसमें लगभग 12 महीने में, 12 मंथ में 76% ग्रोथ हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा रीजन बता देती हूँ। इसका बहुत बड़ा एक रीजन है आपका कोविड ने कहीं ना कहीं डिजिटल एरा को और स्ट्रांगली सपोर्ट कर लिया है और स्ट्रांगली फेवर दे दिया है, ठीक है। तो लगभग अगर एक साल की हम बात करें तो 76% इसका जो है ग्रोथ हुआ है डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन का, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि लगभग अगर अभी मार्केट में देखा जाए तो मार्केट में कौन फोन पे जो है वो ऑपरेट कर रहा है एज अ लीडर, मतलब लीडर है फोन पे आपके मार्केट में। जो सबसे ज्यादा पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट और पेमेंट एप्लीकेशन के लिए सबसे ज्यादा अभी फोन पे यूज होता है, और उसके बाद आपका गूगल पे यूज होता है, यानी गूगल पे से भी आगे है, समझ रहे हो। इट्स वेरी मच that is even higher, the utility, the consumer are very much more as comparison to the Google Pay। आपका फोन पे इतने ज्यादा यूजर्स हैं, और ये मेरे साथ भी होता है। whenever I am taking Ola and all, they are basically asking for the phone pay payment, so that is basically clarifying that the people are basically using phone pay a lot, ठीक है। अब फाउंडर्स और टीम की बात करते हैं। इसके फाउंडर्स और टीम की जब अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके जो 3 फाउंडर्स हैं, समीर निगम, बर्जिन इंजीनियर और राहुल चरी, ये 3 इसके फाउंडर्स हैं। समीर निगम जो है वो आपके इस पर्टिकुलर जो फोन पे है उसके सीईओ है, और वो एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, और उन्होंने मतलब ही सर्व्ड एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियरिंग ऑफ द फ्लिपकार्ट। निगम जो है वो एक स्टूडेंट कहाँ के रहे? यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के, और इन्होंने एमबीए कंप्लीट किया है द वॉर्टन स्कूल से, ठीक है। सो ही इज द समीर निगम, एंड आई थिंक यू ऑल आर एबल टू सी ऑन द स्क्रीन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज राहुल चरी।
अब राहुल चरी जो है ही इज अ CTO, चीफ टेक्निकल ऑफिसर है वो किस चीज के, फोन पे के। क्या है वो, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। एक मिनट, ठीक है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। नेक्स्ट, ओके, सो आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब राहुल चरी के बारे में देखते हैं। उन्होंने अपना करियर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह स्टार्ट किया, जो आईटी में जॉब करते, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और विद द एंडियामो सिस्टम इंक कंपनी में इन्होंने काम किया। आफ्टर इंटर्नशिप इन्होंने सन माइक्रो सिस्टम में किया, उसके बाद इन्होंने अपना करियर एंडियामो सिस्टम में स्टार्ट किया। चरी जो है वो एक मैनेजरल पोजीशन पे रहे हैं। चरी देन वेंट ऑन द सर्व मैनेजरल पोजीशन इन द कपल मोर कंपनीज, जैसे सिस्को सिस्टम में, माइंड 360 में, फ्लिपकार्ट में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह भी इन्होंने सर्व किया है। मैनेजर, को फाउंडर और CTO भी रहे हैं ये इसके। और ये जो है ही इज द वर्जिन इंजीनियर। वर्जिन इंजीनियर जो है वो चीफ CRO है, ठीक है। ही इज बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट है ऑफ इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन ऑफ MGO। 2 साल के लिए रहे हैं ये, मतलब ही वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन एट MGO फॉर 2 years बिफोर फाउंडिंग फोनपे। अच्छा, फोनपे से पहले ये 2 साल MGO में इन्होंने काम किया है। He also worked in the Flipkart, इन्होंने फ्लिपकार्ट पे भी काम किया है। और ये he was the director of engineering Mind 360 and shopzilla.com। तो इन सब में भी वो ये डायरेक्टर की तरह इन्होंने काम किया है। इंजीनियरिंग इन्होंने परस्यू किया है अपना यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से, और इन्होंने अपनी मास्टर डिग्री कंप्यूटर साइंस में कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया से। तो फोनपे की अगर अभी बात करें तो लगभग 3,500 इनके एम्प्लॉइज हैं। और इनकी स्टोरी कैसे शुरू हुई, मतलब ये जो तीनों थे ना, समीर निगम, राहुल चरी और वर्जिन इंजीनियर, ये तीनों ना फ्लिपकार्ट के एम्प्लॉइज रहे हैं, एक्स एम्प्लॉइज, ठीक है, एक्स फ्लिपकार्ट एम्प्लॉइज। तो फोनपे जो स्टार्ट हुआ था एक्स फ्लिपकार्ट, जैसे कैसे फ्लिपकार्ट के जो ओनर्स थे वो पहले अमेज़न में थे, तुम लोग को याद है कुछ? यस मैम, पहले वो अमेज़न में थे। फोनपे के जो फाउंडर थे वो पहले फ्लिपकार्ट में थे। So the same thing happened, like PhonePe was started up by the ex-Flipkart employees, Sameer Nigam, Rahul Chari and Virgin, and it was an app that had a huge potential for growth and immediately realized by Flipkart। और Flipkart को समझ आ गया कि ये एप्लीकेशन बहुत काम करेगा। Who grabbed this opportunity, और उसी साल इन्होंने फ्लिपकार्ट ने एक्वायर भी कर लिया, thereby returning the brainchild of ex-Flipkart employee to its parent Flipkart। यानी कि जो एक्स फ्लिपकार्ट के एम्प्लॉइज थे, कहीं ना कहीं से आइडियाज तो वहीं से आया था, तो उन्होंने अपने दिमाग का उनका रिजल्ट था, उन्होंने वापस फ्लिपकार्ट को वापस कर दिया एक तरीके से। मतलब ये एक सेंस है, एक फ्रेज है यूज करने का तरीका। फोनपे का मिशन और विजन क्या है, तो फोनपे जो है इसका मिशन यही है कि यूनिवर्सल, सीमलेस और एकदम प्रॉपर इकोसिस्टम में हम मोबाइल पेमेंट कर पाए सेफली। और इसका विजन यही है कि फोनपे जो है वो बिल्ड कर पाए लार्ज स्केलेबल एंड ओपन ट्रांजैक्शन ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। फोनपे का नेम, टैगलाइन और लोगो की हम बात करें तो हम लोग तो देख ही पा रहे हैं कि फोनपे का क्या है, ठीक है। फोनपे जो है उसका नाम बहुत ज्यादा सिमिलर है गूगल पे से, पेटीएम से, अमेज़न पे से, तो इसी वजह से ये पेमेंट, मतलब इसी वजह से ये इसेंशियल हो गया, एक पेमेंट ऐप की तरह हमने इसीलिए इसमें नाम यूज किया गया है। फोनपे जो है इसका वर्ड पे जो है वो PAY की जगह PE लिखा होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ हिंदी में भी देखिए पे लिखा है। हिंदी में अगर हम पे लिखते हैं तो PE लिख सकते हैं ना, तो इसलिए हिंदी में यहाँ पे लिखा है। वी आर एबल टू सी द लोगो लाइक दे आर यूजिंग हिंदी प उन्होंने यूज किया है, रादर देन पी की जगह इन्होंने लोगो में अपना क्या यूज किया है, प, ठीक है। प से पतंग, वो प। चलिए, अगर हम फोन पे की बात करें तो इनका प्राइमरी कलर क्या है, व्हाइट एंड वायलेट, व्हाइट एंड वायलेट पे, और इन्होंने हिंदी का वही पे लिखा है। और इसके अलावा इनका फोन पे का ना एक टैगलाइन है, करते जा बढ़ते जा, ठीक है, कीप डूइंग कीप ग्रोइंग। तो ये इन्होंने एक टैगलाइन यूज किया है। अगर इसके बिजनेस मॉडल की हम बात करें
तो जो फोन पे है वो यूपीआई बेस्ड पेमेंट है, तो हमें पेमेंट प्लेटफॉर्म है जहां पर हम मनी जो है एक बैंक से दूसरे बैंक तक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ तक ये भी फैसिलिटीज हमें मिली, जैसे इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी होती है वैसे ही। और इसके अलावा मोबाइल ऐप में बहुत सारे अदर फीचर्स भी हैं। आप ग्रोसरी खरीद सकते हो, इंश्योरेंस करा सकते हो, फूड परचेज कर सकते हो। एंड इसके अलावा फोन पे ने अपना एक पीओएस मशीन भी स्टार्ट किया, जैसे गूगल पे का देखा है ना स्कैनर, गूगल पे का स्कैनर देखा है ना आप लोगों ने, पॉइंट ऑफ सेल्स पे जो रखा होता है, जैसे कि आपके पेमेंट के पास रखा होता है, वैसे ही फोन पे ने अपना भी एक पीओएस मशीन को स्टार्ट किया है और लगभग हर एक शॉप में और किराना स्टोर में और यहाँ तक सब्जी वाले जो वेंडर्स है भैया हैं उनके पास भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। सो पीओएस सिस्टम की वजह से यहाँ फोन नंबर और ये सब चीजों की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली स्कैन कीजिए और जिसके नाम पे वो आपका पीओएस मशीन है उसके अकाउंट में वो पैसा चला जाएगा। ठीक है। सो फोन पे जो है वो एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत ही इजी टू यूज है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है फोन पे यूज करने का। रीजन सिर्फ रिचार्ज कराना और बेसिक चीजें नहीं है, बल्कि यू कैन डू मल्टीपल पेमेंट्स, यू कैन ट्रांसफर द फंड एंड इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ द फंड, दैट इज बेसिकली वी आर एबल टू डू वाया यूजिंग द फोन पे। उसके अलावा ये जो है फोन पे अभी जो है ये ऑफिशियली इंश्योरेंस ब्रोकेज फर्म भी बन गया है, इंश्योरेंस ब्रोकेज फर्म है। और इसी वजह से आपका जो लाइसेंस है IRDAI क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसने लाइसेंस भी दे दिया है फोन पे को और ये एक इंश्योरेंस ब्रोकरेज फर्म बन गया। यानी यहां से आप इंश्योरेंस को परचेज कर सकते हो। जैसे कैसे एजेंट से हम इंश्योरेंस लेते हैं ना, लेते हैं या नहीं लेते हैं एजेंट से इंश्योरेंस, वैसे ही आप यहाँ से भी आराम से अपना इंश्योरेंस वगैरह का ट्रांजैक्शन कर सकते हो, इंश्योरेंस परचेज कर सकते हो। और इसका लाइसेंस खुद IRDAI के थ्रू इनको फोन पे को मिला है। फोन पे की रेवेन्यू मॉडल की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, फोन पे पूरा कमीशन पे बेस्ड है। वो प्रमोशन करते हैं वेरियस प्रोडक्ट ऑन इट्स ऐप एप्लीकेशन। अपने फोन पे वो बहुत सारे जब फोन पे का वो ओपन करना ना आप एप्लीकेशन, नीचे देखना मल्टीपल प्रोडक्ट्स का आपको दिखेगा ऑप्शन, तो मल्टीपल प्रोडक्ट का ये बेसिकली प्रमोशन करते हैं, इनके थ्रू इनको कमीशन मिलता है। और इसके अलावा इनके पास जो रिचार्ज पॉइंट सेंटर, जहां से ये रिचार्ज वगैरह जो आप फोन पे को यूज करके रिचार्ज कराते हो ना, तो वहां से भी रिचार्ज कराने के ऊपर ये कमीशन लेते हैं। उसके अलावा इनके पास और भी क्या ऑप्शन है कि ये ऑनलाइन परचेज वगैरह जो भी आप एप्लीकेशन के थ्रू करते हो, यानी जहां जहां आप एप्लीकेशन यूज करते हो, जैसे एग्जाम्पल में आप किसी कंपनी से प्रोडक्ट मंगवा रहे हो, किसी वेंडर के थ्रू आप जो रिचार्ज जो करवा रहे हो, जैसे कि जियो का रिचार्ज करा रहे हैं, तो भाई जियो का रिचार्ज करा रहे हैं, कौन सी कंपनी है, रिलायंस का है जियो, तो भाई वो आपको कमीशन देगा। आ रही है बात समझ में, क्लियर है? यस मैम। तो दिस इज हाउ द रेवेन्यू मॉडल इज हियर। एंड लगभग अगर हम बात करें डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म की, तो ये लगभग इट इज बेसिकली चार्जिंग ₹2 वर्थ ऑफ प्रोसेसिंग फी अगेंस्ट ऑफ द मोबाइल रिचार्ज। तो कई बार ये प्रोसेसिंग फीस वगैरह भी चार्ज कर लेते हैं, जैसे ₹2 वगैरह, ₹100 पे। सो दिस इज हाउ इट इज बेसिकली वर्किंग। और इसके अलावा ये जो है फोन पे जो है ये डिजिटल पेमेंट का एक ऐसा मतलब ये ऐसा एक एप्लीकेशन है जिसने बाकी और जो भी कमियां थी डिजिटल पेमेंट में वो सब पूरी कर दी। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। पेटीएम ऑल्सो डिड नॉट सपोर्ट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ चार्जिंग द कस्टमर एंड हैज बिन रिपोर्टिंग एज ट्रस्ट बिल्ड करना भी एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस की कोई कीमत नहीं। यानी पेटीएम इज ऑल्सो क्रिटिसाइजिंग, दे आर सेइंग दैट, बट दिस इज ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन व्हाट इज गिवन हियर। फोन पे की अगर चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि यहाँ पर ये जब आए तो इनको बहुत सारी चीजें इनको एक्सप्लोर करनी थी जो कि अनएक्सप्लोर्ड था। तो फोन पे जो था दैट वाज एक्वायर्ड बाय फ्लिपकार्ट वाज समथिंग दैट सेटल थिंग्स। मतलब जब फोन पे एक्वायर हो गया तो इसी वजह से कहीं ना कहीं फोन पे जो था थोड़ा बेटर तरीके से वो एक्सप्लोर भी कर पाया। ठीक है। और उसके अलावा फोन पे जो था वो 2017 में जनवरी 14 में ICICI बैंक के थ्रू इस ट्रांजैक्शन को बंद भी करवा दिया गया, क्योंकि उनके हिसाब से NPCI गाइडलाइंस को फोन पे फॉलो नहीं करता था। सो UPI मतलब ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स बिकॉज पेमेंट से रिलेटेड है, तो सम टाइम दे फेसेस चैलेंजेस। अगर हम फोन पे के एक्विजिशन की बात करें तो दे हैव इंडस ऐप बाजार, जॉकर। उसके बाद फोन पे जो है
यहाँ पर लगभग दे हैज अनाउंस्ड एन ईसॉप बाई बैक, ठीक है, इक्विटी शेयर, ठीक है, ईशॉप मतलब तो ऑप्शन परचेज के एम्प्लॉय शेयर्स ऑप्शन परचेज भी इन्होंने लगभग 135 करोड़ का अनाउंस किया था। पार्टनरशिप की बात करें तो दे हैव पार्टनरशिप विद एक्सिस बैंक, ठीक है, एक्सिस बैंक के साथ इनका पार्टनरशिप है। इनका कौन कौन कॉम्पिटिटर है तो मोबाइल पे, जस्ट पे, पीसीकेटी, पेटीएम, मोबीक्विक, भारत पे। सो दीज आर द कॉम्पिटिटर्स ऑफ दिस कंपनी। फोन पे जो है इट वाज एक्वायर्ड बाय द फ्लिपकार्ट, ऑलवेज रिमेंबर इट। Okay, so I guess these are the basic information what matlab we discussed in the class. Anyone have any doubt in this in phone pay? No, ma'am. समझ में आया सबको फोन पे how it's working? Always remember it is a UPI app, kind of UPI app, and the legal जो इसको legal क्या मिल रखा है, legal rights मिला हुआ है, sanction किया हुआ है rights from the RBI. So that's why it is basically universally utilized. Basically in India so it is normally utilized, and they are working on the safety and legality, proper legal system they have, security is there. Okay, so anyone have any doubt in any of the point whatever we discussed? मैम फोन पे में कितना एम्प्लॉयज है? लगभग 3.5 के, लगभग 3,500 लोग फोन पे में अभी काम कर रहे हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है दैट इज इन बैंगलोर। ओके, हाँ चलिए, ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। एनी ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। Thank you, ma'am. ओके ओके।